नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। और अब बात गोवा से यूपी तक शपथ ग्रहण की। गोवा में प्रमोद सावंत सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है। 1 घंटे बाद दूसरी बार प्रमोद सावंत की ताजपोशी होगी। प्रधानमंत्री मोदी मेगा समारोह में शिरकत करेंगे। इसके अलावा बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी आज गोवा में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाले हैं। जेपी नड्डा पहले ही पहुंच चुके हैं। दूसरी बार प्रमोद सावंत बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेने वाले हैं। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि बहुमत के साथ वहां पर बीजेपी ने सरकार बनाई है। PS Sridharan Pillai, Governor of Goa, hereby appoint Dr. Pramod Sawant as the Chief Minister of the state of Goa. He will assume office from the date he is administered the oath of office and secrecy. Unquote. I request Honorable Chief Minister Designate Dr. Pramod Sawant to come and take the oath of office and secrecy. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to Dr. Pramod Sawant. हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सुपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधाना विशयी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकत्मताय उन्नात राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाच्या प्रमाणे सगळ्या तरेच्या लोकांक हांव दिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाच्याच संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव डॉक्टर प्रमोद पांडुरंग सावंत देवाचो सपूत घेता की गोंय राज्याचो मुखेलमंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडलेले अथवा म्हाका कळटले अशें कसलीय गजाल असो मुख्यमंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचे आसात तितलेंच सोडल्यार हांव खंयच्याच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताच्या लागीं उक्ती करचो ना। Honorable Governor, with your permission, sir, the order of appointment of the ministers may be read. Order dated March 28, 2022, and I quote, "In exercise of the powers vested in me under Article 164(1) of the Constitution of India, I, PS Sridharan Pillai, Governor of Goa, hereby appoint the following as ministers on the advice of the Chief Minister. 1. Shri Vishwajit P. Rane. 2. Shri Movin Gudino. 3. Shri Ravi Nayak. 4. Shri Nilesh Kabral. 5. Shri Subhash Shirodkar. 6. Shri Rohan Khonte. 7. Shri Govind Gaude. 8. Shri Atanasio Monserrat. They will assume office from the date they are administered oath of office and secrecy." Unquote. I request Honorable Governor to administer the oath of office and secrecy to the ministers designate. I request Shri Vishwajit Rane to come and take the oath of office and secrecy. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, do swear in the name of God that I will bear true faith
and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as the Minister for the State of Goa, that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Vishwajit Pratap Singh Rane, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of the State of Goa, except as may be required for the discharge of my duties as such Minister. I request Shri Movin Godino to come and take the oath of office and secrecy. I, Movin Heliodoro Godino, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister for the State of Goa, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Movin Heliodoro Godino, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the State of Goa, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. I request Shri Ravi Nayak to come and take the oath of office and secrecy. मैं रवीश धरम नायक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं गोवा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और श्रद्धा शुद्ध अंधकरण से निर्माण करूंगा और तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों को प्रति संविधान और विधि द्वारा अनुसार न्याय करूंगा। मैं रवीश धरम नायक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय गोवा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाए जाएंगे अथवा मुझे ज्ञान होगा ऐसे किसी व्यक्तियों का तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करने का अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संकुचित या प्रकट नहीं करूंगा। I request Shri Nilesh Cabral to come and take the oath of office and secrecy.
I Nilesh Juan Cabral, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and the integrity of India, that I will faithfully and consciously discharge my duties as a minister for the state of Goa, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I Nilesh Juan Cabral, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the state of Goa, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. I request Shri Subhash Shirodkar to come and take the oath of office and secrecy. मैं सुभाष अंकुश शिरोडकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं गोवा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुभाष अंकुश शिरोडकर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय गोवा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्तियों को तब से सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I request Shri Rohan Khonte to come and take the oath of office and secrecy. हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की कायद्या वरवीं स्थापीत जाला अशें भारतीय संविधानाशी हांव खरेली श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगितलो। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकमताय उन्नत राखतलो। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभयतलो आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाण सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेच संबंदी मायेपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलो। हांव रोहन अशोक खंवटे देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हूण ह्या विचारा खातीर हाडटले अथवा म्हाका कळटली अशी कसलीय गजाल असो मंत्री म्हूण म्हजी कामां यथा योग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसता तितलें सोडल्यार हांव खंयचेच व्यक्तीक अथवा व्यक्तींक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्षपणान कळोवचो ना व त्याच्या लागीं उक्ती करचो ना। I request Shri Govind Gowde to come and take the oath of office and secrecy. देवाचो सोपूत घेता की कायद्यावरवीं स्थापीत जाल्ल्या अशा भारतीय संविधानाविशयी हांव खरी श्रद्धा आनी निश्ठा बाळगतलों। हांव भारताची सार्वभौमताय आनी एकात्मताय उन्नत राखतलों। हांव गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून म्हजी कामां निश्ठेन आनी शुद्ध बुद्दीन निभायतलों आनी संविधान आनी कायदो हाचे प्रमाणे सगळ्या तरांच्या लोकांक हांव धिटायेन आनी भेदभावा बगर तशेंच कोणाचेय संबंदी मोयपास अथवा दुस्वास बाळगिनासतना न्याय वागणूक दितलों।
हांव गोविंद शेपू गावडे देवाचो सोपूत घेता की गोंय राज्याचो मंत्री म्हणून ह्या विचारा खातीर हाडटलो अथवा म्हाका कळटली कसलीच गजाल असो मंत्री म्हणून म्हजी कामां यथायोग्य निभावपा खातीर गरजेचें आसा तितलेंच सोडल्यार हांव खंयच्याय व्यक्तीक अथवा व्यक्तीक प्रत्यक्षपणान अथवा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्षपणान कळोवचो ना वा ताचे लागीं उक्ते करचो ना. देव बरें करूं. I request Shri Atanasio Montserrat to come and take the oath of office and secrecy. I, Atanasio Montserrat, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the state of Goa, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Atanasio Montserrat, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister of State of Goa except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. नमाज को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद हुआ। मध्य प्रदेश के सागर में एक विश्वविद्यालय में एक छात्रा की नमाज पढ़ने के बाद हंगामा बरपा है। नमाज वाले वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने कहा है कि कुछ लोग हैं जो इस देश की समरसता को तोड़ना चाहते हैं। इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आखिर नमाज की इन तस्वीरों में ऐसा क्या है कि बीजेपी के नेता इस पर ऐतराज जता रहे हैं? नमाज पढ़ने वाली छात्रा पर कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। आखिर नमाज की इन तस्वीरों में ऐसा क्या है जिस पर मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में हंगामा बरपा है? आपको नमाज पर मचे सियासी कोहराम की पूरी कहानी बताते हैं, लेकिन पहले हिजाब पहनी छात्रा की नमाज का पूरा वायरल वीडियो दिखाते हैं। डिपार्टमेंट देखते हैं क्या चल रहा है। दरअसल ये वीडियो है सागर के हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का, जहां की एक क्लास में छात्रा ने नमाज पढ़ी। विश्वविद्यालय के ही किसी छात्र ने क्लास में नमाज का वीडियो बनाया। देखते ही देखते ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से छाया और देखते ही देखते इस वीडियो ने मध्य प्रदेश की सियासत को गरमाया। कुछ एक लोग हैं, चाहे वो अर्बन नक्सल टाइप लोग हैं, चाहे इस प्रकार सिमी इमी के लोग हैं, जो देश के अंदर सामाजिक समरसता के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं और इसको कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब बीजेपी के नेता क्लासरूम में नमाज पर सवाल उठा रहे हैं। इस घटना को सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाली साजिश बता रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्म गुरुओं का अलग ही आरोप है। लड़की के सिर पर हिजाब है, यही वजह है कि इस घटना पर सियासत भी बेहिसाब है। कुछ लोग हैं जो देश के अंदर कहीं न कहीं नफरत फैलाकर अपना सियासी उल्लू सीधा करना चाहते हैं, और मैं समझता हूं कि जब से बीजेपी आई है ये तमाम चीजें सामने आ गई हैं। हिजाब को लेकर, तलाक को लेकर, 370 को लेकर, और अब जो है कश्मीर फाइल को लेकर, ये जो सारी चीजें हैं वो सारी की सारी जो है नफरत को बढ़ावा देने वाली हैं। उधर विश्वविद्यालय की क्लास में छात्रा के नमाज पर हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा भारी है। वीडियो वायरल होने के बाद छात्रा पर कार्रवाई की मांग भी जारी है। नमाज पर हंगामा बढ़ा तो विश्वविद्यालय के कुलपति भी फौरन एक्शन में आएंगे। वायरल वीडियो के आधार पर जांच के लिए उन्होंने कमेटी बना दी है। और इसी के साथ हमने सभी छात्र छात्राओं को ये भी निर्देशित किया है कि क्योंकि ये विश्वविद्यालय है और यहाँ एक पठन पाठन का यहाँ पर एक माहौल है, तो जितनी भी हम अपने सांप्रदायिक हम लोग कार्य करेंगे वो अपने निवास स्थान पर, अपने गृह में या किसी धर्म स्थल पर हम लोग करेंगे, जिससे कि पूरे विश्वविद्यालय में एक पठन पाठन का एक माहौल बना है। क्लास में नमाज के वायरल वीडियो पर अब विवाद भी जारी है और जांच भी, लेकिन इस नमाज को लेकर कोहराम भी बढ़ता जा रहा है और सियासी संग्राम। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
अब बात मदरसों की। मदरसों के नाम पर भी जोरदार हंगामा बरपा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मदरसों पर गैर जरूरी प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जा रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मदरसों में देश विरोधी गतिविधियां होती हैं और इसलिए मदरसों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना चाहिए। सरकारी मदरसे हैं उनको बंद कर देना चाहिए। अगर बंद नहीं करते तो उनमें कम से कम भगवा तो जारी कर ही देना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु खुद सरकारी मदरसों को बंद करने की वकालत कर रहे हैं। ऐसे मदरसों के भगवाकरण की बात कह रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरु के मन में मदरसों को लेकर ऐसी बात आई है क्योंकि अब मदरसों को लेकर छिड़ी नई सियासी लड़ाई है। मदरसों को लेकर नया हंगामा कर्नाटक में छिड़ा है। हिजाब गीता पाठ के बाद नए शिगुफे से विवाद का कारवां आगे बढ़ा है क्योंकि अब यहां बीजेपी विधायक ने मदरसों पर बैन की मांग उठाई है। आरोप है कि मदरसों में देश विरोध की पढ़ाई है। अंत शिक्षण मद्रासಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಮದ್ರಾಸ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಶಾಲೆಗಳು ಇಲ್ವಾ ಇನ್ನು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳು ತಾನೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಮಕ್ಕಳು। बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य ने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से ये मांग की तो फौरन ही मुस्लिम धर्मगुरुओं का बयान आया। किसी ने सरकारी गैर सरकारी मदरसों का अंतर समझाया, किसी ने ऐसे बयानों को सियासी एजेंडा बताया। मदरसे दो तरह के हैं। एक मदरसे वो हैं जो गवर्नमेंट से एफिलेटेड हैं, जिनको गवर्नमेंट तनख्वाही भी देती है और सारा खर्च उनका उठाती है। एक मदरसे वो हैं जो लोगों के चंदे पर चलते हैं। मैं समझता हूँ कि सरकार जिनके बारे में बोलती है कभी भी वो मदरसे हैं जिनको सरकार ऐड देती है और मेरा मानना ये है कि ऐसे सारे मदरसों को बंद कर देना चाहिए जो गवर्नमेंट के ऐड पर चलते हैं। क्योंकि जो मदरसा गवर्नमेंट के ऐड पर चलेगा तो जाहिर बात है कि गवर्नमेंट जो है उसमें अपने कानून लागू करेगी, उसको कोई एतराज़ नहीं कर सकता। जाहिर है कि मदरसों में हमेशा हुब्बुल वतनी की तालीम, मुल्क के साथ वफादारी की तालीम और मुल्क के साथ किस तरीके से एक इंसान को बेहतरीन तरीके से रहना है इसकी तालीम दी जाती है। तो ये लोग जो बयान देते हैं ये वाकई में अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को मेन स्ट्रीम में बनाए रखने के लिए और कहीं ना कहीं अपने नफरती एजेंडे को स्थापित करने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बीजेपी विधायक रेणुकाचार्य के बयान पर पहली बार विवाद हुआ हो। वो पहले भी अपने बयानों से कर्नाटक की सियासत गरमाते रहे हैं, लेकिन इस बार बात एक मजहब से जुड़ी है। उन्हें अपनी पार्टी के कुछ नेताओं का साथ तो मिल रहा है, लेकिन सधे हुए शब्दों में।